Hello, good morning. Good Hello. morning, sir. Good morning, sir. Walaikum salam. How are you? Fine, sir. Okay. Okay, as you know, we have been already discussing since last two classes, and it is the third class of print culture and the modern world. Under this lesson, we actually discussed about, especially about the development of print culture and how it started in this contemporary world. As we just, I want to recall all these things which we have already discussed since last 2 or 3 days. That print culture or printing press or its development for the first time started in China in the year 594 AD. I am just recalling all these things which we have already discussed. After that, after 200 years or 200 and a half, print culture and the print technology, what was available in China at that time, reached Japan. And in Japan, it was also developed. Some technology was added there. And near about 300 years, the journey existed in Japan. And at that time, there was a religion called Buddhism. It was spreading in Japan. So the technology also contributed in the spread of this religion in Japan, and also the printing press translated the missionary works also. Religious texts were printed at that time during those periods. So there were a lot of activities, and some new technologies were also added into the print culture. And after that, near about 11th century, this culture reached Europe. And in Europe, print culture also became very vital. And in this context, we are studying about the Gutenberg. He was a merchant, and he belonged to an agriculturist family also. So Gutenberg was also, he played a role, a dynamic role in the development of the print culture. And in so many countries of Europe, like France, Germany, Italy, and this culture established their momentum, and the books also increased. Although the books were expensive during those periods, because a lot of work were done by hand. So it was a problem for the poor people to purchase the books. So some new technologies were added to the print culture, and there were three groups in the European society: children, women, and the workers. Yesterday I was discussing for this. And so these three sections of the society were quite interested with the book. Reading mania actually was developed at that time. So there were several books written on the folk songs, especially for children. And in France, in the year 1857, for the first time in the European countries or in the
history of print culture, a, children publishing company, printing press was established there, and especially the books were published by the for the children. And then the women were also the important part of the French society or the European society. So the books also were written for the women, especially for the literate women, which were interested also uh, for novels. And in this way, the print culture was getting momentum in Europe also. And today we are now going to discuss here new innovations. This is the main topic also for your, and five topics will be, I think, will be completed tomorrow, five topics. But this is the main new innovations is a topic here. Under this, and before that, 19th century, what happened? Manual teachings paper, sisters, two sisters where they were the novel writers, novelists they were, and these became famous also in Europe. These were the development step by step. And today, we are now going to discuss the new development for the print culture, and it was with the topic with the name further innovation. Mid 19th century, Richard M. Ho of New York perfected panel driven cylindrical press. It was also a technology. It was a technology, it was new technology added to the print culture and the printing press. So it was Richard M. Ho. By this, by this technology or by this equipment or by this theory, 8,000 sheets were printed per hour. 8,000 sheets where it was not possible before that because it was needed huge quantity. We know also that during the mid of the 19th century, 20 million books were flooded in the European market. Yesterday I was discussing for that. So here, the mid 19th century, Richard M. Ho introduced a new technology into the print culture and the printing press. And for that, the printing press capable of printing 8,000 sheets per hour. It was very important for the printing press at that time. Later 19th century, offset press technology was developed and three colors were at a time, colors at a time. Three colors were printed at a time. So it was also late 19th century. So it was a technology, and step by step, the print culture or the printing press were getting the technology from different parts of the world, from America, from Europe, from India also. We are going to discuss here the Indian contribution also. So here, new innovations, under this new innovations, we will have to understand that other developments, methods of feeding paper, improved automatic paper reels, and photoelectronic controls of the colors. Automatically, this system was introduced later 19th century, and it was so 19th century periodicals. Now novels, already novels were publishing before also, but this time also novels were periodically, weekly novels, fortnightly novels also were published during this period, late 19th century. Cheap series called shilling series sold in England. Cheap series. Series means, just for example, here we have the social science book from class 5, 6, from 5 to 8. So it means it is the series. The same writer has written the book on what from the 5 to 8. So it is a series 1, 2, 3, 4, 5. So series book, cheap series called shilling. So it was the cheap books, and it was possible. It became possible due to the
development of the printing press, because before that it was very, very expensive. But when the children or the textbooks or the booksellers or the book libraries also wanted books, it became cheap because the publishing were in great numbers, like 20 million books, as I told you, flooded in Europe during the 19th century or mid of the 19th century. So here, the new innovations created a lot of uh, advantages to the printing press. फारूक सर, ये यहाँ पर जरा सा ये आ रहा है, पता नहीं. So in this way, print culture got momentum, and it was already discussed by the experts also to introduce the new technology into this arena. So here, during the Great Depression, we know very well, under the chapter Hitler in class 9, we have already discussed the Great Depression of 1929 after the First World War. Great Depression. Now, here during this COVID-19, Great Depression is going to knock all the countries of the world. It was the Great Depression also, economic crisis was there. But very soon, this world, contemporary world, is going to face a new economic crisis and economic depression. So I think it would be a historical also. So during the Great Depression of 1929, here the date is not mentioned, but during Great Depression, sale of printed materials declined and cheap paperback editions sold. ग्रेट डिप्रेशन, आर्थिक मंदी बोलते हैं इसे हम, जब मईशत इकोनॉमी जो हमारी शैटर्ड हो जाती है, जैसे शैटर्ड हुई बहुत अमेरिका, ये इसकी जर्मनी की जो पॉलिसी थी उसकी वजह से, और जिसमें अमेरिका ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मनी को जो कुछ कैश दिए थे, जर्मनी के क्राइसिस से निपटने के लिए उन पैसों को भी अमेरिका को मांगना पड़ा था. तो इट वाज वॉल स्ट्रीट क्राइसिस भी कहते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस भी कहते हैं, या ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी कहते हैं. उस जमाने में सस्ती किताबें बिकने लगी एंड प्रिंटेड मटेरियल्स डिक्लाइन किया एंड चीप पेपरबैक एडिशन सोल्ड. सस्ती किताबों का डिमांड बढ़ा. जाहिर सी बात है कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस होती है तो रुपए की वैल्यू काफी कम हो जाती है. तो यही हुआ वहां पे. और फिर वहां के बाद हम आगे बढ़ते हैं. India, and now the printing press culture, this culture entered into the Indian subcontinent. We know very well that why India is called subcontinent. India is called subcontinent because, like before the independence, India was like a continent. Also, it was all very small, but it was Pakistan and Afghanistan, some parts of Afghanistan and Bangladesh also with India. So it was called the subcontinent. So now here, by this 19th century, the print culture entered into India. And now we will see that how this culture performed a vital role in the printing press and in the history of printing press in India. So for the first time it reached Goa. We know very well that Goa was a missionary center. Goa was a place where the Dutch people were administrating that state. So Goa was there, and still Goa is the Christianity center actually, and it is situated also on the bank of ocean, Arabian Sea. So Goa, so for the first time, India and the world of print, it is the name of the topic, India and the world of print, manuscripts before the age of print. When you will see page number 158 or 159, you will found this name, the name of this topic. India had a rich and old tradition of handwritten manuscripts in various vernacular languages. Here you have to understand that India is a center since last, if you will see the ancient Indian history, if you will also see the, if you will see that, if you will see the age of the Harshvardhana,
the age of the reign REIG and reign कहते हैं दौर को, जमाना को, reign of Chandragupta Maurya, reign of Ashoka Mahan, Ashoka the Great, you will see that Manuscript's work was in great esteem, it was also in great demand also during those periods. So it is the story of the ancient Indian history where we see that manuscripts was in great process, and it was the time when there was no handmade. It was also handmade, but handmade, not print culture was not. Rather, the handmade also machine was not there. So it is the story during the Hindu periods. Hindu periods means the Ashoka Mahan, Chandragupta Maurya, Harshvardhana. These were the people, and in this uh, under the under the dialogues, also under the diary of Huan Sang and the Fahian, they also mention about the manuscripts also. We know very well, even today, if we go to the Sanchi Astupa, we will see that the Ashoka's teachings regarding the Dhamma, Ashoka's Dhamma, Dhamma कहते हैं, मैंने बताया था एक दिन, धम्मा धर्म को कहते हैं, और ये अशोका ने इसको भी किया था। तो ये सारी चीजें हमारे प्राचीन काल में भारत में हो रही थी। ये कोई नई चीज नहीं थी कि मॉन्स्क्रिप्ट्स बनाना, ये सब हो रही थी हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ का कल्चर ये था। और उस जमाने में हम समझते हैं कि संस्कृत वाज ओल्डेस्ट लैंग्वेज, स्टेट संस्कृत इज कॉल्ड द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और इससे पहले भी एक लैंग्वेज और थी जिसे हम कहते हैं प्राकृत, प्राकृत भाषा। ये प्राकृत भाषा भी थी, लेकिन प्राकृत भाषा में थोड़ी जटिलताएं थी, इसलिए दिस कुड नॉट बी फेमस। लेकिन संस्कृत फेमस हुई, और ये तमिल से, केरला से संस्कृत काफी मशहूर हुआ ये लैंग्वेज। तो संस्कृत में और अरेबिक में और पर्शियन, ये तीन भाषाओं में उस जमाने में प्राचीन भारत में मॉन्स्क्रिप्ट्स का काम हो रहा था और इस पर बनाए जा रहे थे। बट मॉन्स्क्रिप्ट्स में जो भी चीजें लिखी जा रही थी ये काफी हेवी होती थी, एंड इट वाज नॉट पॉसिबल टू कैरी मॉन्स्क्रिप्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये बहुत मुश्किल काम था, और इसीलिए भारत में, लेकिन ये सब काम हो चुके थे जिसको प्रिंटिंग प्रेस में लाना था और उसको एक हल्के में और एक खूबसूरत अंदाज में पेश करना था। India had a rich and old tradition of handwritten manuscript in three languages: Sanskrit, Arabic, and Persian. It was not a new thing for Indian culture. इंडिया ट्रेड में और इन manuscripts में अभी भी पुरानी जो लाइब्रेरियां हैं, पुस्तकालय, वहां हम जाते हैं तो देखेंगे कि हमारे पास में पांडुलिपियों में तैयार किया हुआ, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का काम किया हुआ उस जमाने में भी हमारे पास अभी है, मौजूद है लाइब्रेरी में। Written on palm leaves and handmade paper, ये सब मॉन्स्क्रिप्ट जो लिखे जा रहे थे तो हैंडमेड पेपर्स और पाम लीव्स पर लिखे जा रहे थे। पेजेस ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड, लेकिन टेक्नोलॉजी आ रही थी धीरे धीरे, तो पेजेस को इलस्ट्रेट कर दिया जा रहा था काफी खूबसूरत अंदाज में, हाशिए को, उसके मार्जिन को। एंड मॉन्स्क्रिप्ट्स हाईली एक्सपेंसिव एंड it was not up to the reach of the common people, because there was 100% work and it was handwritten. But now when the print culture reached India, जैसे ही इंडिया में ये कल्चर आया, ये प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट आया, यानी चाइना से शुरू होते हुए जापान, जापान से यूरोप, और यूरोप से फिर इंडिया, एंड टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि अमेरिका ऑल्सो, लेकिन यूरोप से डायरेक्टली इंडिया ही आया। और इंडिया में आने के बाद इंडिया के इकोनॉमी को भी डेवलप किया। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस पर भी इन्वेस्ट किया। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कॉटन मिल, टेक्सटाइल मिलों पर और शुगर की मिलों पर, और फिर मेटल इन द लेटर ऑन, उनको उन पर खर्चे किए गए, उन पर इन्वेस्ट किया गया। और पांच बड़े बड़े हमारे पास में ये थे उद्योगपति और इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और बहुत बड़ा काम किया। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि हाईली एक्सपेंसिव, नॉट वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। It was so expensive and it was not handy that it was not also possible to in the daily use. It was not possible so. So everyday's life. Teachers dictated notes to a student who became literate without reading any text.
उस जमाने में भी टीचर्स का हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे पास में होते थे, हमारे प्राचीन भारत में, कि जिस जमाने में टेक्स्ट हमारे पास नहीं थी, तो एक होता था जो गुरुकुल हुआ करता था, और गुरुकुल में बच्चों को भेज दिया जाता था और ओरली वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता था। ये हमारे भारत में ये चीज, ये कल्चर हुआ है। तो ये प्रिंट कम्स टू, तो ये हमारे पास में धीरे धीरे वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। तो यहाँ पर टीचर्स ने अपना जो उनका तरीका था पढ़ाने का, कि उन्होंने वो पढ़ाते थे, स्टूडेंट्स को नोट्स दिया करते थे, ओरली हो रहा था सब काम। who became literate without reading any text, because it was not available, and in some part it was available, but it was so expensive that they were not capable to purchase the books also. Now print comes to India also. Press came to Goa with Portuguese in mid 16th century. अब इसमें जो हमारे मिशनरीज थे गोवा में, जो चर्च लोगों के प्रीस्ट थे, जो जिसे हम कहते हैं पादरी, they contributed their efforts into the development of print culture in Goa. And also printed books began in Konkani. Were two languages. There were two languages spoken in that time, Konkani also. Konkan is the area. When you will go to the Goa or Karnataka, you will see that this language is spoken from in Maharashtra also. Maharashtra, between Maharashtra and Karnataka. This Konkan, there is an area called Konkan, and this language is spoken still, Konkani. And Kannada also. Kannada is the official language of Karnataka. So these were the only two languages spoken at that time. So दो काम हुए यहाँ पर उस जमाने में, इसी दो लैंग्वेज में, कोंकणी में और कन्नड़ में, ये दो लैंग्वेज में काम हुए. First Tamil book was published in 1579. When the print culture or the print printing press development just touched Goa, so in these two languages developed, and the first Tamil book was published in 1579 at Cochin. Still, Cochin is there in, I think, Kerala. And Malayalam book was published in 1713. First, it was the first book, 1713. हमने कल एक बात बताई थी कि हमें जो कुछ खास देना है, इवेंट्स कैसे कैसे हुआ हमारा डेवलपमेंट ऑनवर्ड फ्रॉम 594 to the 20th century, up to the 20th century. तो इसमें ये सब आती हैं कि फर्स्ट ये आता है हमारे पास. 2014 में भी ये क्वेश्चन आया था, 16 में भी ये क्वेश्चन आया कि विच वाज द फर्स्ट तमिल बुक पब्लिश्ड इन इंडिया. तो 1579 में तो ये आया, और उसके बाद फिर 1713 में आया मलयालम बुक. बाय 1710 डच मिशनरीज प्रिंटेड 32 तमिल टेक्स्ट. अब डच मिशनरीज, मैंने मिशनरी के बारे में कल भी बताया था कि मिशनरीज हमारे पास में जो अपने रिलीजियस काम के लिए जाने जाते थे और इस्टेब्लिश कर रहे थे यहाँ पर इंडिया में बहुत सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश किया, खास तौर से उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को किया, और हेल्थ के एतबार से दे वर वेरी कॉन्शियस पीपल, यूरोप के थे. तो इन लोगों ने उस जमाने में 32 तमिल टेक्स्ट का पब्लिकेशन हुआ, यानी 1710 बाई 17 डच मिशनरीज ने. क्या जाहिर सी बात है, इट वाज बेस्ड ऑन द रिलीजियस, because it was the work of the missionaries. James Augustus Hickey began to edit the Bengal Gazette, a weekly magazine. अब गजेट किसे कहते हैं? गवर्नमेंट का पूरा A to Z इंफॉर्मेशन किसी मैगजीन के जरिए दिया जाता है, that is called gazette. Gazette is the officially magazine of the government. In short, we can say गवर्नमेंट का जो एक होता है, सारे इंफॉर्मेशन होते हैं डेवलपमेंट के, टैक्सेस के. गजेट इज द गवर्नमेंट्स ओपिनियन एंड गवर्नमेंट्स वर्क्स जो हुआ है, अभी भी गजेट निकलते हैं उनके, सारी चीजें होती हैं, कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना क्या होना है ना, क्या बजट में आया, कितना जीडीपी है, क्या है, सारी चीजें गजेट में होती हैं. इट इज द डॉक्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड गजेट. तो जेम्स अगस्टस हीके began to edit the Bengal Gazette in weekly magazine में गजेट बंगाल का देना शुरू किया. And Hickey, a British, published a lot of advertisements. अब यहाँ पे फिर हम जाते हैं, इंडिया ही में था Hickey. Hickey नाम है जो ब्रिटिश का पब्लिशर था, और उन्होंने पब्लिश किया कुछ एडवर्टीजमेंट्स और कुछ सीनियर ऑफिसर्स के बारे में
कुछ गॉसिप्स किया उन्होंने। तो ये गॉसिप्स, वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पर गवर्नर जनरल थे, वारेन हेस्टिंग्स को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने उसको सजा दी और वो उनको प्रोसिक्यूट किया गया, सजा दी गई उनको। वारेन हेस्टिंग्स प्रोसिक्यूटेड ही के इंडियंस टू पब्लिश्ड इंडियन न्यूज़पेपर्स। अब यहाँ पर इंडियंस भी थे, इन लोगों ने भी जब देखा कि डिमांड बढ़ने लगे तमिल में, मलयालम में, पर्शियन, अरेबिक ऑल्सो, तो धीरे धीरे न्यूज़पेपर्स का डिमांड बढ़ा और इंडियंस जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन लोगों ने इन्वेस्ट किया और प्रिंटिंग प्रेस का मजीद जो है, जैसे हम लोगों ने देखा यूरोप के 5 देशों में, है ना, काफी हद तक बड़े पैमाने पर वो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था लेट 19वीं सेंचुरी में। उसी तरह से यहाँ भी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, प्रिंटिंग प्रेस खोले गए, स्टैब्लिश किए गए। एंड फर्स्ट वन वाज बंगाल गजेट बाय गंगाधर भट्टाचार्य। गंगाधर भट्टाचार्य एक पब्लिशर का नाम है जो बंगाल के थे और उन्होंने इंग्लिश ब्रिटिश के टाइम की बात है ये, और इन्होंने बंगाल गजेट को पब्लिश किया। ये इट वाज द वर्क फॉर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। इट वाज नॉट पॉसिबल बिफोर बिकॉज बड़ी आसानी से इसमें ये काम होने लगा और ये बंगाल का गजेट पब्लिश किया गया बाय गंगाधर भट्टाचार्य। ये इंडिया में इस पर काम हुआ। अब हम यहाँ से थोड़ा इसके आगे हम बढ़ेंगे, एक दो टॉपिक पर हम लेते हुए कि इसके बाद फिर व्हाट हैपेंड देयर इन इंडिया। वी नो दैट दिस वाज द टाइम ऑफ द ब्रिटिश period, and here we were under the British rule. So the technology especially technologies were coming from the from England, and so there was a lot of development, positive developments in the printing press. And so in our country, in India, it was also just got momentum. प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये हो चुका था हमारा। और अब मैं कुछ जो टॉपिक्स हैं हमारे पास में उसको मैं करता चलूंगा। मैं खोल रहा हूँ, किताब को ओपन कर रहा हूँ। प्रिंट कम्स टू इंडिया। अब रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स। कल एक बात आई थी रिलीजियस रिपोर्ट्स की बात, पब्लिक डिबेट, और जिसमें मैंने रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में बताया था। रोमन कैथोलिक चर्च जो 2 हिस्सों में है हमारा ये दुनिया में, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। तो ये हमारे पास में अभी जो टॉपिक हमारे पास में है रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स। कल भी हमने इस पर पढ़ा था। लोग बैठे कि अब इतनी जटिलता है, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि जिस जमाने की मैंने बात अभी की थी थोड़ी देर पहले कि देयर वाज ए टाइम इन इंडिया, इंडियन हिंदू डायनेस्टीज में, जैसे अशोका महान और उससे पहले का जमाना, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर अशोक ये वो आपका, तो इन सब में हम देखते हैं, 6 में भी पढ़ा होगा, 7 में भी हम लोगों ने पढ़ा कि देयर वाज सोसाइटी हमारी डिवाइड थी उस जमाने में। और ये जो है रिलीजियस हिंदुइज्म में काफी जटिलताएं थी। हिंदू धर्म के पूजा पाठ में, कर्म कांड में वेरी टीडियस जॉब इट वाज। सो इसकी वजह से बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म को मानने लगे थे। यही हाल क्रिश्चियनिटी में भी हुआ और रोमन कैथोलिक को भी छोड़ के बहुत सारे प्रोटेस्टेंट में चले गए थे। तो ये बड़े बड़े एक्सपर्ट जो प्रीस्ट थे या इनके जो थे रिलीजियस लीडर्स। वीडियो पॉज हो गया। हाँ, हेलो क्या पूछ रहे हो? हाँ बोलो, क्या पूछना चाहते हैं? पढ़ाइए आप। Carry on, sir, carry on. Okay, thank you. So religious debates started during this period, और ये रिलीजियस डिबेट्स इंडिया के लिए भी था क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश थे और जहाँ जहाँ ये लोग थे, जहाँ क्रिश्चियनिटी थी, तो वहाँ भी डिबेट ये शुरू हुआ। और उस डिबेट में को हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि रिलीजियस रिफॉर्म्स, एंड ये हमारा पेज नंबर 169 में है। और उसके बाद ये टॉपिक एक हमारा होगा जिसमें डिबेट्स को देखेंगे, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। अब इंडिया में एक ऐसा माहौल बना, ये हम कर नहीं रहे हैं, करेंगे तो कल हम नोट्स के साथ में करेंगे, लेकिन अभी हम बता दे रहे हैं हमारे पास 5 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हैं, वो न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। तो बहरहाल ये जो हमारे पास में है उससे पहले वाला डिबेट, इसको मैं बता देना चाहता हूँ। अब डिबेट क्या था हमारा? उलमा, इसमें इस्लामिक कल्चर की भी बात थी। और हमने पढ़ा होगा क्लास 7 में
एक टॉपिक था कि उसे कहते हैं, 3 उलमाए कराम का नाम था वहाँ पे। मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ये किताब में टेक्स्ट में, इंडियन टेक्स्ट में है हमारी, ये 7 के स्टैंडर्ड में। तो वहाँ से हमारा गुरु नानक वगैरह आए थे। तो उस जमाने में भी डिबेट ही हो रहा था। इस्लाम के जो बुनियादी थे अरकान वो तो थी अपनी जगह पर, डिबेट ये हो रहा था कि जो इसमें और रिफॉर्मेशंस कैसे लाया जाए। इसी को हम कहते हैं, इसको कहते हैं हम कि भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट का जमाना था। इट वाज ए मूवमेंट। मूवमेंट में मैंने बताया, रिवोल्यूशन भी हम कह सकते हैं। जब हम इसको कह रहे थे प्रिंट कल्चर को, तो इसमें भी हमने कहा कि इट वाज ए रिवोल्यूशन, जो प्रिंट कल्चर हमारा इस तरह से हुआ। और फिर हमारा एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन है, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन है, हमारा ये ग्रीन रिवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं वो है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है। दिस ऑल वेयर द रिवोल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा ये डिबेट, उस पर भी उलमाए किराम बैठे। यहाँ भी सेकंड पैराग्राफ में हमारे पास दिया हुआ पेज नंबर 169 में कि early in 19th century, as you know, there were intense debates around religious issues. कल हमने इस पर डिटेल बताया था कि between Protestant and Catholic there was lot of atrocities. चर्चेज अपने वर्चस्व, हमने इसको फ्रांस में भी देखा रिवोल्यूशन में, कि फ्रांस में भी 3 ऐसे सेक्शन सोसाइटी के थे। देखो हिस्ट्री का कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और इसका कनेक्शन हर जगह मिलेगा हमें। फ्रांस में भी जब हम फ्रांस के सोशल काउजेस को देख रहे थे इन ब्रिंगिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो वहां हमने देखा था कि सोशल काउजेस में फ्रांस को 3 हिस्सों में, और उसमें ये हमारे चर्च वाले भी थे एक शामिल। तो चर्च को बहुत ज़्यादा इख्तियारात थे, बहुत सारे पावर्स थे वहाँ इंग्लैंड में और यूरोप के दूसरे मुल्कों में। तो इस पर डिबेट हो रहा था। डिफरेंट ग्रुप, जिसमें हमारा प्रोटेस्टेंट्स कभी हावी हुआ और कभी कैथोलिक चर्च हावी हुआ, और उसके बाद डिफरेंट ग्रुप्स कंटिन्यू टू द हैपनिंग विद कॉलोनियल सोसाइटी इन डिफरेंट वेज। और जहाँ जहाँ भी कॉलोनीज थी, मैंने बताया था कि कॉलोनीज जैसे साउथ अफ्रीका, जैसे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडिया, तो इन सब जगहों पे जो हमारे पास में कॉलोनियल थे, तो यहाँ भी यूरोप वाले ही थे। तो यहाँ भी इन लोगों में आपसी ये चर्च अपनी ताकत को, अपने वर्चस्व को दिखाना चाहता था। तो देयर वाज कंफ्यूजन और among the common people. So it was the time for the debate and discussion, and the public debates also held. This was time in intense controversies between the social and the religious reformers and the Hindu orthodox. इसी जमाने की बात है जब मैं हिंदू ऑर्थोडॉक्स, अब ये क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हिंदू समाज, सोसाइटी इंडिया में, इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। हम लोग सब जानते हैं, इट वाज कॉमनली नोन टू एवरीवन कि क्या था वो, कि ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोफेशन इट वाज डिवाइडेड बाय द ब्राह्मण्स। ब्राह्मणों ने अपने को शुरू से ही, ये हमारे पास में अभी की मिड ऑफ ये 1920 नहीं, ये तो इट इज द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, वहीं से इसको अभी जोड़ रहा है कि इस वजह से एक माहौल बना हुआ था जो ऑर्थोडॉक्स से। कल हमने एक चीज पढ़ा था कि प्रिंटिंग प्रेस का जब डेवलपमेंट हो रहा था, कुछ ऑर्थोडॉक्स ने ये भी सोचा था कि हमारे एतकाद को, हमारे एतमाद को, या हमारे रिलीजियस जो सेंटिमेंट है उसको ये खत्म कर देगा। ये यूरोप वाले ने भी सोचा और इंडिया ने भी सोचा था कि कहीं ना कहीं ये प्रिंट कल्चर का जो डेवलपमेंट होगा ये हमें डैमेज करेगा। तो धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें मैंने कहा था कि धर्म एक ऐसी चीज होती है जो सेंटिमेंटल बनाती है, और वही सेंटिमेंट की भावना थी यहाँ पर। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इंडिया में भी ये जो समाज को बटा, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोफेशन समाज बटा हुआ था। जैसे ब्राह्मण थे पहले, जो पढ़ने पढ़ाए, जिसको हम कहते थे, क्या कहते थे हम लोग, ब्राह्मणों का जो टोला था, उसमें वो पढ़ने पढ़ाने का काम वो कर रहे थे, जिनको कहा जाता था, अब ये दूसरे थे हमारे वैश्य, और तीसरे थे वैश्य बनिया, और तीसरे थे शूद्र। और पहले क्या थे, वैश्य के पहले होते थे ये, बहरहाल इट वाज द अपर कास्ट कम्युनिटी, और जिनका काम था पढ़ना पढ़ाना, तो ये हमारा ब्राह्मण, ये अपर कास्ट कहलाता था। दूसरे पे आते थे
ये आते थे शुद्ध पहले वाले पे उसका नाम है, टेक्निकल वर्ड है, पॉलिटिकल साइंस में भी, हिस्ट्री में भी है। तो वो उनका काम था। तो ये इन्होंने दूसरे को दिया था, इन्होंने जो एग्रीकल्चर में थे और जो क्षत्रिय, यस क्षत्रिय और वैश्य क्षत्रिय और क्षत्रिय उनका काम था मुल्क की हिफाजत करना और आर्मी में जो जो होता था वो काम करना। और आखिरी शूद्र थे जो समाज का सबसे जिंदा जग, जो हम क्लास 8 में भी पढ़ा कि एस्केवेंजिंग, मैनुअल एस्केवेंजिंग का काम यही शूद्र किया करते थे। ये हमारा समाज बटा हुआ था। तो लेकिन जब ये प्रिंटिंग प्रेस आया, रिलीजियस डिबेट शुरू हुआ, उस जमाने में भी ऑर्थोडॉक्स, जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे, उन्होंने भी क्वेश्चन किया कि हमें इससे निजात दिलाया जाए और इस तरह की भी किताबें छपने लगे हमारे भारत में जो हमारे लिए कारआमद हों। और इसीलिए इस तरह के डिबेट हमारे पास शुरू हुए। और यहाँ पर उलमाए किराम ने, आइए मुंह का खत्म करो ना, खाती तो हो नहीं तुम। प्रिंट कम्स टू, तो ये यहाँ पे हमारे पास में, इन नॉर्थ इंडिया द उलेमा वे आर डीपली एंग्शियस अबाउट द कोलैप्स ऑफ मुस्लिम डायनेस्टीज, दे फियर दैट कॉलोनियल रूलर्स वुड, इसको ले चलेंगे हम लोग, अभी तो नहीं बता, इसको बताने का ये सिलसिला होगा कि मैं थोड़ा सा बता दूं कि हम लोग पढ़ेंगे जब फाइनल का थोड़ा, उसमें हमारे पास में टॉपिक आएगा। अभी भी आया था खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट जो हम लोगों ने पढ़ा है, उस खिलाफत मूवमेंट में यहाँ पर एक पढ़ा था किंगडम को हम लोगों ने, वो किंगडम टर्की, जो अभी भी टर्की है, इस्तांबुल जिसका कैपिटल है अंकारा। तो टर्की में वो था एक हमारा जिसको कहते हैं वो ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार ये सब डेवलपमेंट हुआ है। उससे पहले भी हुआ, मुस्लिम ताकतों को कम करने की कोशिश की गई, जैसा अभी भी पूरी दुनिया में हो रहा है। ताकतें तो खैर नहीं है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है। तो ये सिलसिला पहले भी था, तो उस पर भी डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ। इसको हम देखेंगे कि क्या डिबेट हुआ, इससे निकला क्या, कैसी फिर किताबें आने लगी मंजर आम पे प्रिंटिंग प्रेस के जरिया, और इस तरह से हमारा ये सफर चला। तो 5 टॉपिक हमारे पास में है जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हमारे पास में इसके बाद हम चाहेंगे कि 3 सेक्शन से हमारा ये हो गया है अभी तक। एक सेक्शन में हमारा हुआ था पहला जो एज ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया, दूसरा हुआ था एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और तीसरा ये हमारा जो कल इंशाल्लाह हमारा एंड करेगा, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अगेन वी विल बी interested to just enter into the political science, because political science also got I think 6 or 7 lessons, but I think it would be reduced this time due to this global crisis. So it will be discussed later on, and after that economics and geography, you know very well, 2 lessons will be enough for geography and economics. But you are requested to go through the notes which you have been already we have been providing to you. Hello, हाँ क्या पूछ रहे हो? हेलो, टाइम ओवर हो गया। हाँ बोलो ना, क्या पूछेंगे? टाइम ओवर हो गया? जी सर। ओके ओके, थैंक यू। तुम कौन हो? अल्तमश बात कर रहे हो? नो सर, अब्दुल्ला बोल। अच्छा अब्दुल्ला बात। पढ़ाई हो रही घर पर भी कि नहीं हो रही है? हो रही है सर। हो रही है पढ़ाई, चलो अच्छी बात है, पढ़ाई करते रहिए। तो कहते हैं कि एसटीडी विंस द रेस, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो कुछ आगे कामयाबी मिलेगी, नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल होगा। जो